کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ۔ فیصل آباد وی این میں کرونا مریضوں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ قرنطینہ سینٹرز میں حیرت انگیز حد تک رش کم ہونے لگا۔ ضلع فیصل آباد میں 52، چنیوٹ میں 11، ٹوبہ ٹیسنگ میں 7 اور جھنگ میں 38 مریض زیر علاج ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق زیر علاج مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے فیصل آباد سے، جہاں پر ڈویژن میں کرونا کے مریضوں کی حالت بہتر ہونے لگی ہے۔ جی ہاں، قرنطینہ سینٹر میں حیرت انگیز حد تک رش کم ہونے لگا۔ فیصل آباد میں کرونا کے متاثرہ 52 مریض زیر علاج ہیں۔ چنیوٹ میں 11، ٹوبہ میں 7 اور جھنگ میں 38 مریض زیر علاج، جبکہ زیر علاج مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زیر علاج مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، قرنطینہ سینٹر میں حیرت انگیز حد تک رش کم ہونے لگا۔ فیصل آباد میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کے تعداد کی بات کریں تو وہاں پر 52 مریض زیر علاج ہیں۔ چنیوٹ میں 11، ٹوبہ میں 7 اور جھنگ میں 38 مریض زیر علاج ہیں۔ زیر علاج مریض تیزی سے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے قرنطینہ سینٹر سے، جہاں پر حیرت انگیز حد تک رش کم ہونے لگا۔ فیصل آباد میں صحت انتظامیہ نے ایک اور گھر سے قرنطینہ ختم کر دیا۔ 2 بار رپورٹ نیگیٹو موصول ہونے پر گھر سے قرنطینہ ختم کیا گیا۔ ایک ہی گھر میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر گھر کو قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، فیصل آباد میں صحت انتظامیہ نے ایک اور گھر سے قرنطینہ ختم کر دیا۔ 2 بار رپورٹ نیگیٹو موصول ہونے پر گھر سے قرنطینہ کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک ہی گھر میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر گھر کو قرنطینہ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، ایک ہی گھر میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر گھر کو قرنطینہ کیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فیصل آباد میں صحت انتظامیہ نے ایک اور گھر سے قرنطینہ ختم کر دیا ہے۔ 2 بار رپورٹ نیگیٹو موصول جس کی وجہ سے گھر کو کوارنٹائن پیریڈ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 بار رپورٹ نیگیٹو موصول ہونے سے گھر سے قرنطینہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال انتظامیہ نے کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے حکومت سے ایک اور مشین فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بات کرتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے الائڈ اسپتال میں BSL-3 لیب کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ بایو سیفٹی لیول 3 لیب کے حوالے سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 250 افراد کے جو ٹیسٹ ہیں وہ 24 گھنٹوں میں کیے جا سکیں گے، اور کورونا وائرس کے جو مشتبہ یا کنفرم مریض ہیں وہ اس لیب کے ذریعے جو مستفید ہو سکیں گے، جبکہ اس سے قبل لاہور IPH جو تھے ٹیسٹ وہ بھجوانے پڑ رہے تھے۔ یہاں پہ ڈویژن فیصل آباد کے جو ٹیسٹ ہیں الائڈ اسپتال میں وہ کیے جا سکیں گے، اور اس سلسلے میں ہسپتال انتظامیہ جان سے ایک اور مشین PCR مشین کی فراہمی کا جو مطالبہ کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر ایک اور مشین حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے گی تو تقریباً 500 افراد کے جو ٹیسٹ ہیں وہ 24 گھنٹے میں کیے جا سکیں گے، کیونکہ الائڈ اسپتال انتظامیہ میں جو عملہ انتظامیہ جانب سے جو عملہ تھا انہیں تربیت کروائی گئی تھی، باقاعدہ طور پر ٹریننگ کروائی گئی تھی، اس لیے عملہ جو یہاں پہ تعینات ہے وہ تربیت یافتہ ہے، اور ایسے میں اگر 2 مشینیں ہو جاتی ہیں تو 24 گھنٹے میں 500 کے قریب جو مریض ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ بہت شکریہ عزادار حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کرونا وائرس کا خوف، حکومت نے لاک ڈاؤن کر کے شہریوں کو گھروں میں بند کر دیا، مگر وبا کے دنوں کی اعداد و شمار حیرت انگیز کہانی بیان کرنے لگے۔ اپریل کے 15 دنوں میں پچھلے برس سے 238 اموات کم ہوئی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ اپریل کے 15 دنوں میں پچھلے برس سے 238 اموات کم ہوئی ہیں۔ جی ہاں، مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کورونا وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہری گھروں پہ رہنے پہ مجبور ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ڈر ہے، اس کے علاوہ جو کورونا وائرس کا خوف ہے جو شہریوں کو گھر میں ہی رہنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن اس کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ خاصے حیرت انگیز ہیں، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوگا، تو صرف 3 اموات کرونا وائرس کی وجہ سے کنفرم فیصل آباد میں ہوئی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اوورآل اموات کی تو اس میں جو پہلے سے اگر 2019 کے اپریل کے وسط تک 688 اموات ہوئی تھی، ابھی 2020 کے اپریل کے وسط تک 450 اموات ہوئی ہیں، یعنی کہ 238 اموات کا فرق ہے جو کہ کم ہوئی ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں
हादसात नहीं रूनमा हो रहे, इसके अलावा जो लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, तो फिर इसकी वजह से अमवात की शरह पहले से खासी कम हुई है। और सिर्फ एक माह में फैसलाबाद की एक 15 दिन में जो अप्रैल के वो सिर्फ 238 अमवात में कमी आई है। यानी कि अगर ये सिलसिला लोगों की जानिब से एहतियात का सिलसिला बरकरार रहता है, लोग अपने घरों से कम निकलते हैं, और स्पेशली वो जो लोग कुफ्ते मदाफत कम रखते हैं वो अपने घरों से कम निकलते हैं, तो फिर यकीनन जी ये जो रेशो है ये खासी कम रह सकती है। क्योंकि ये एक आम तासर था कि शायद ज़्यादा अमवात हो जाएं या शायद कोरोना से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो अमवात में हैरत अंगेज़ इजाफा देखने में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें पहले 15 दिन जो अप्रैल के लॉकडाउन के दौरान इसमें अमवात में खासी जो कम शरह देखने में आई है। 238 अमवात सिर्फ 15 दिन में कम हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी हां, एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि फैसलाबाद कोरोना वायरस का खौफ, हुकूमत ने लॉकडाउन करके शहरियों को घरों में बंद कर दिया, मगर वबा के दिनों की अदाद शुमार हैरत अंगेज कहानी बयान करने लगी। अप्रैल के 15 दिनों में पिछले बरस से 238 अमवात कम हुई। जी हां, आपको बताएं कि 238 अमवात कम हुई है। अप्रैल के 15 दिनों में पिछले बरस से 238 अमवात कम हुई। आपको अपडेट कर रही हैं फैसलाबाद कोरोना वायरस का खौफ है, हुकूमत ने लॉकडाउन करके शहरियों को घरों में बंद भी कर दिया है, मगर वबा के दिनों की अदाद शुमार हैरत अंगेज कहानी बयान करने लगी। अप्रैल के 15 दिनों में पिछले बरस से 238 अमवात कम हुई। इसके मुतालिक अब्दुर्रहमान भी हमें अपडेट कर रहे थे कि अप्रैल के 15 दिनों में पिछले बरस से 238 अमवात कम हुई हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरी रमजान मुबारक के दौरान घरों में इबादत को तरजीह दें और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला के हजूर सजदारेज होकर तौबा इस्तगफार और इस वबा के खात्मे के लिए खुलूस नियत से दुआ करें, ताकि हम इस आजमाइश की घड़ी से निकल सकें। जी हां, आपको बताते चले कि ये मैसेज था, ये एक पैगाम था, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के जरिए दिया गया वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। जी हाँ, क्या पैगाम दिया गया, एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरी रमजान मुबारक के दौरान घरों में इबादत को तरजीह दें और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला के हजूर सजदारेज होकर तौबा इस्तगफार और इस वबा के खात्मे के लिए खुलूस नियत से दुआ करें, ताकि हम इस आजमाइश की घड़ी से निकल सकें। जी हाँ, ये दुआ भी की गई कि इस आजमाइश की घड़ी से हम निकल सकें और तौबा इस्तगफार करें, इस वबा के खात्मे के लिए खुसूसी नियत से दुआ करें। झंग पुलिस ने रमजान मुबारक का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। जिला भर की मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर सख्त सिक्योरिटी होगी, जबकि अहम मकामात और मसाजिद के बाहर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगा दिए गए हैं। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए झंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। DPO झंग डॉक्टर गयास गुल का ये कहना है कि ज़िला भर की तमाम तर मसाजिद और इमाम बारगाहों में पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। मुतल्लिका जो सर्कल के DSPs हैं वो तमाम तर इलाकों का गश्त जारी रखेंगे और SHOs को पाबंद बनाया गया है कि तमाम तर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी को वक्तन चेक किया जाएगा। इस हवाले से ज़िला भर में 502 मसाजिद और इमाम बारगाहों में पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। अब मजमूई तौर पर 1942 पुलिस एहलकार जो है वो माह रमज़ान मुबारक के दौरान अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। तमाम DPO झंग डॉक्टर गयास गुल की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर पुलिस एहलकार जब मस्जिद में आने वाले नमाजी होंगे उनको रोक कर आगाह करेंगे, उनको इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो आपस में फासला जो है वो ज़्यादा रखें, जबकि इस दौरान वो अब मास्क का इस्तेमाल भी करें और जो है वज़ू के बाद वो सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलन आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक मजीद तोसी करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी नागुज़ेर है।
वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करना आवाम के मुफाद में है। रमज़ान उल मुबारक में शहरियों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। मसाजिद के लिए जारी 20 नकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान उल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी पर पाबंदी होगी। दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स, तंदूरों और बेकरियों को सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑप्टिशियंस शॉप्स, बेकरियां, ज़राअत, बीज, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मशीनरी की वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स और वेंडर्स को भी मुकर्ररा औकात में काम करने की इजाजत होगी। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में दोहरे मयार की पॉलिसी नहीं चलेगी। फैसलाबाद के ताजरों ने दो टोक मुतालबा कर दिया। कहते हैं या तो पूरा मुल्क बंद किया जाए या फिर हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। मतनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं इस वक्त कपड़ा मार्केट खुलना बहुत जरूरी है, मगर हुकूमत दर्जी को इजाजत दे रही है, कपड़े की मार्केट को खुलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी हां, आपको बताते चले कि उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है आधा तीतर आधा बटेर का काम नहीं चलेगा। या तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाए या कारोबार करने की इजाजत दी जाए। लॉकडाउन में दोहरे मयार की पॉलिसी नहीं चलेगी। फैसलाबाद के ताजरों ने दो टोक मुतालबा कर दिया। कहते हैं या तो पूरा मुल्क बंद किया जाए या फिर हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस छोटे ताजर जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। ताजरों की जानिब से बारहा मुतालबात किए जा रहे हैं कि हुकूमत कुछ SOPs बना कर दे जिसके तहत छोटा दुकानदार जो है वो अपना कारोबार कर सके, क्योंकि कारोबार बंद होने की वजह से ताजरों के साथ साथ जो उनके साथ मजदूर तबका है वो भी बेरोजगार हो चुका है। दुकानों के किराए अदा करने से भी कासिर हैं दुकानदार इस टाइम। तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए हमें कोई ऐसे SOPs दें जिसके तहत हम कुछ वक्त के लिए अपना कारोबार कर सकें। तो मदनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा है उनका। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है फजील साहब के आधे सेक्टर इन्होंने खोले हुए, आधे सेक्टर बंद है। टेलर को इन्होंने इजाज़त दे दी काम करने की, वो टेलर कहाँ से कपड़ा लेंगे। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए। हमारे घरों में खर्चे ख़त्म हो गए हैं, हम कहाँ से खर्चे करें, हम क्या करें। बाजार पूरे इन्होंने सील कर दिए हुए, इतनी सख्ती कर दी है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। खुदारा हमारा कुछ किया जाए, ये ज्यादती है, यह सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम आपके तवज्जो से गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे टेलर को खोला, अपनी मनपसंद इन्होंने सेक्टर खोले हुए, खुदारा कपड़े के साथ ज्यादती ना करें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। ये कहा जा रहा है कि टेलर की अगर दुकान खुली है तो कहाँ से कपड़ा शहरी खरीदेंगे और फिर टेलर को देंगे सिलाई के लिए। तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए ताजरों को काम करने की इजाज़त दी जाए, SOPs बनाकर दिए जाएं जिस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। और जो कारोबार हैं वो अगर चल सकेंगे तो दुकानदारों के साथ साथ जो मजदूर तबका है उनका रोजगार भी चल सकेगा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप बता रहे थे कि लॉकडाउन में दोहरे मयार की पॉलिसी नहीं चलेगी, ये कहना था ताजर बरादरी का। फैसलाबाद के ताजरों ने दो टोक मुतालिबा कर दिया है। कहते हैं या तो पूरा मुल्क बंद किया जाए या फिर हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। मतनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं कि इस वक्त कपड़ा मार्केट खुलना बहुत जरूरी है, मगर हुकूमत दर्जी को इजाजत दे रही है, कपड़े की मार्केट को खुलने की इजाजत नहीं दी गई। जी हां, हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, कल से ये मामला जो है ज़ेरे गौर है, हम अपनी स्क्रीन पर सिटी 41 के तवज्जो से ये खबर नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि ताजर बरादरी के साथ अब तक हुकूमती नुमाइंदे की कोई मीटिंग का भी इनेकाद नहीं किया गया?
जी, कल भी हमने इस इशू को उठाया था और आज दोबारा से आप देख रहे हैं कि जिस तरह फजील मुख्तलिफ दुकानदार, मुख्तलिफ जो ताजर लीडर हैं उनको दिखा रहे हैं, उनका मुतालबा भी वही है जो कल बाकी जो पूरे पाकिस्तान के ताजरों का और सनत उनके बड़े बड़े लीडर्स का मुतालबा था कि या तो सारे कारोबार खोलने की इजाज़त दे दें या फिर सबको बंद कर दें। कुछ अरसे के लिए कम अज़ कम सारे कारोबार खोलने की इजाज़त देनी बहुत ज़रूरी है, ये उनका मुतालबा है ताजरों का। वो ये मुतालबा तो कम से कम बिल्कुल जायज़ है कि अगर एक दर्जी को इजाज़त देनी है कारोबार करने की, तो दर्जी के जो मुंसलिक उससे कारोबार हैं, जो उससे रिलेटेड शोबे हैं, उनको भी तो इजाज़त दी जाए। वरना दर्जी कपड़ा कहाँ से ले, लोग कहाँ से कपड़ा लेके दर्जी के पास जाएंगे? कपड़े की दुकानें बंद हैं लेकिन दर्जी को काम करने की इजाज़त है। तो ये मज़का खेज़ किस्म की सूरत हाल है जिसका किसी भी सतह पे कोई अदराक नहीं किया जा रहा। ना यहाँ के कमिश्नर, जिनको बाकायदा हुकूमत के इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मकामी तौर पर जो मुनासिब समझें वो इजाज़त दे सकते हैं उस कारोबार को, अभी तक जो हमारी PHMA से लेके ये जो ताजरों का मसला है, इस पर किसी किस्म की किसी को इत्माद में नहीं लिया गया, किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए कोई ज़हमत नहीं की गई। नतीजा ये निकल रहा है कि ताजरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जा रही है और वो यूँ महसूस कर रहे हैं कि जैसे हुकूमत नाम की कोई शय मौजूद नहीं है जो उनके मुतालबात एड्रेस कर सके। क्योंकि होता ये है और होना ये चाहिए कि जब कोई इशू किसी तरफ से उठाया जाता है, अगर वो जस्टिफाइड है, अगर वो जायज़ है, तो उसको एड्रेस किया जाता है। अगर उस पर आपकी राय मुख्तलिफ हो और आपकी एजेंसियों की रिपोर्ट मुख्तलिफ हो, आप समझते हो कि इस कारोबार को इजाज़त देना बहुत नुकसानदेह, तो वो उसका इनकार किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत मज़का खेज़ किस्म की सूरत हाल है कि आप एक कारोबार, ऐसे कारोबार को इजाज़त दे रहे हैं जिसकी अगर कोई बाकी उससे मुंसलिक शोबे नहीं खोलेंगे तो वो कारोबार चल ही नहीं सकता। तो यही इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। फैसलाबाद के ताजर इसी किस्म के मसाइल का रोना रो रहे हैं कि अगर आप दर्जी को इजाज़त देते हैं तो जो कपड़े की दुकानें हैं वो भी खोलने की इजाज़त दें, जो बटन जहाँ से दर्जी ने लेने उनको भी सप्लाई करने की इजाज़त दें, और अगर फीता और कैंची कहीं से लेनी है तो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आधा तीतर आधा बिठाइए, वो चल नहीं सकता सिलसिला। ये रोना रो रहे हैं फैसलाबाद के ताजर कई दिनों से कि उनको कम अज़ कम उनके मुंसलिक शोबे, उससे रिलेटेड शोबे जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सकें। और रमज़ानुल मुबारक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें उनका ये कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सारे कारोबार को बेशक थोड़े टाइम के लिए खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त दी जाए। तो इस पे एक हमदर्दाना गौर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और उससे मुतल्लिका जो भी गवर्नमेंट के जो अदारे हैं और ख़ास तौर पे कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जिनके पास इस वक्त बहुत सारे इख्तियारात हैं, वो मकामी लोगों की, मकामी कारोबारी अफराद की ज़रूरियात को समझते हुए वो उनको स्टेप लेने चाहिए। ख़ास तौर पे अभी जो PHMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके अरबों रुपए के जो ऑर्डर मनसूख होने का खदशा है, क्योंकि उनको भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है कि जिसमें उनके कुछ शोबों को इजाज़त है और कुछ को इजाज़त नहीं दी गई, और जिनको इजाज़त नहीं दी गई खोलने की, उनके बगैर वो शोबे भी काम नहीं कर सकते जिनको इजाज़त दी गई है। तो इस पे इनके बड़ा रैशनल जो मुतालबात हैं, जायज़ हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, अकल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस वो भी इसमें उनको चाहिए कि अपना रोल अदा करें, और जो सरकारी मशीनरी है उनको भी अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है कि कुछ शोबे जो बाकी कुछ शोबों की वजह से खुल ही नहीं सकते, आप उनको खोलने की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए, वरना तो पहले वाले जो शोबे उनकी भी इजाज़त वापस ले ली जाए, क्योंकि वो अमलन प्रोडक्शन ही शुरू नहीं कर सके। क्योंकि जितने भी हौजरी के शोबे हैं, जो माल जहाँ से लेना है, हौजरी वालों के अरबों रुपए के जो ऑर्डर्स हैं बाहर के, वो मनसूख होने का डर है, क्योंकि उनको वो मुतल्लिका सामान जिनके बगैर वो प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते, वो उनको मिल ही नहीं सकता, वो मिल ही नहीं रहा क्योंकि उन पर पाबंदी है। यही फैसलाबाद के ताजरों का मुतालबा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जायज़ मुतालबा है, इस पर गौर करना चाहिए, वरना फैसलाबाद भर से इस तरह की आवाज़ें उठती रहेंगी और हुकूमत पर तनकीद होगी, इसलिए होगी कि बहुत जायज़ किस्म के जो मुतालबात हैं वो भी नहीं माने जा रहे। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। जी हाँ, आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से ताजर परेशान है, अपने मुतालिबात कर रहे हैं कि खुदारा कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। गुर्बत ने परेशान कर दिया है, लॉकडाउन में दोहरे मयार की पॉलिसी नहीं चलेगी। फैसलाबाद के ताजरों ने दो टोक मुतालिबा कर दिया।
कहते हैं या तो पूरा मुल्क बंद किया जाए या फिर हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। मतनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल कहते हैं इस वक्त कपड़ा मार्केट खुलना बेहद जरूरी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, अब आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजा इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास, सैयद मुनव्वर बुखारी, आयशा यासीन शरीक अप्रैल में 484 अफराद को खिलाफ वर्जियों पर 4,08,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत भी की है। बात करते हैं फसीउल्ला से। फसीउल्ला, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल माह सयाम की आमद है और इस हवाले से मुल्क के दीगर अजला की तरह जिला चिन्योट में भी ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि अशिया खुर्दनोश की महंगे दामों पर फरोख्त जारी है। इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तीनों अजला के असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बुलाया गया है। और इस मौका पर माह अप्रैल में जो अब तक कारकर्दगी दिखाई गई है उस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया गया और उनका कहना था कि अब तक जो है वो 484 अफराद के खिलाफ जायद दामों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने पर कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। उनके खिलाफ 4,08,000 से जायद जुर्माने भी आयद किए गए हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो कारकर्दगी है उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और उनको सख्ती से हिदायत की गई है कि माह रमजान में वो रेगुलर बेसिस पर जो है डिप्टी कमिश्नर को आगाह करेंगे कि क्या क्या डेली बेसिस पर उनकी जानिब से कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। और खुसूसी तौर पर चूंकि पंजाब भर में प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया है जिसमें 11 ऐसी आइटम है जिसकी जखीरा अंदोजी है, जिसकी महंगे दामों पर खरीदो फरोख्त के खिलाफ जो है वो 3 साल की सजा आयद की। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बढ़ते हैं टोबा टेक्सिंग की जानिब से, जहां का डीसी टोबा आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास डीसी की सब्जियों, फलों समेत दीगर तमाम अशिया के सस्ती दामों फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई है। बात करते हैं राना अजनूर से। राना अजनूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट टोबाटेक सिंह के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह आमना मुनीर ने सदारत की। इस मौका पर जिला भर के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे। डीसी ने हिदायत की कि रमजान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको चेक करने का कि तमाम अफसरान जो हैं जिनके पास इख्तियार है मजिस्ट्रेट्स, उनका कि वो अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी फील्ड में जाएँ और चेक करें कि जितने भी ये दुकानदार हैं वो रेट्स वैसा कहा कि सब्जियों फलों समेत जितनी भी अशियाँ हैं उन सब के रेट्स जो हैं उनको चेक किया जाए। यकीनी बनाया जाए कि जो रेट्स अब मुकर्रर किए गए हैं तमाम अशिया फरोख्त, उनका कि अगर कोई भी दुकानदार नाजायज़ नफाखोरी करता है उसको पढ़ जाएगा कि तमाम मजिस्ट्रेट जो है यकीनी बनाएं कि जो रिलीफ है वहाँ को मिले। कहा कि इसके लिए तमाम मजिस्ट्रेट जो हैं सुबह शाम दिन औकात में ज़रूर बाजार में जाएँ और चेक करें कि कोई भी दुकानदार जो है वो नाजायज़ कहा कि ताजों से भी दरख्वास्त है कि वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि वो भी रमजान मुबारक के दौरान जो है अवाम को रिलीफ दें और जायज़ मुनाफा ज़रूर लें और कोई भी दुकानदार जो है। बहुत शुक्रिया राना ज़नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला झंग में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी। मुलाजमीन ने यूटिलिटी स्टोर्स खोलकर अशियाए खुर्दनोश की फरोख्त शुरू कर दी है और शैयों की बड़ी तादाद स्टोर्स पर पहुंच गई। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में भी गुज़श्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल कर दी थी और तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स कल बंद रहे थे। आज झंग में तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स को खोल दिया गया है। पहला रोज़ा है और आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इन यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने जो है तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स को खोल कर वहाँ पर जो है वो शहरियों को अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़िला भर में तकरीबन 83 मुकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं जो कल तमाम दिन बंद रहे, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का ये कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो रमज़ान के हवाले से रिलीफ पैकेज दिया ये इनके लिए खुश आइन था, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की जो कमी की गई है मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश में, जिस पर शहरी मुतमईन थे। ताहम आज तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स खुलने पर जो है वो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इन तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुँचे। वहाँ पर उनका खासा रश देखने में आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि उनके मुतालबात जो हैं वो ताहाल पूरे नहीं हुए। ताहम इंतजामिया की जानिब से उनको हदायत जारी की गई हैं कि शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स को खोला जाए, जिस पर तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स को खोल दिया गया और वहाँ पर आज शहरियों को अशियाए खुर्दनोश जो है वो फराहम की जा रही हैं।
बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बढ़ते हैं चिन्योट की तरफ, जहां पर माह सयाम शुरू हो गया, मगर ताहाल हुकूमत पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी, चावल और दीगर अशिया की फराहमी यूटिलिटी स्टोर पर मुमकिन नहीं बना सकी। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या कहना है खरीदारों का? बिल्कुल जी, माह सयाम का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान की मुबैना गफलत के बायस जो ऐसी अशिया थी जिन पर सब्सिडी जो है वो दी गई थी और उन्हें हुकूमत जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर यकीनी नहीं बना सकी है, जिसमें चीनी, घी, दालें और इसके साथ साथ दीगर अशिया ज़रूरिया जो है वो शामिल हैं। और यही वजह है जब इन चीज़ों की जो दस्तयाबी है वो यूटिलिटी स्टोरों पर यकीनी नहीं बनाई जा सकी तो शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से ये चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, स्टोर पर चीनी, दालें दस्तयाब हैं? नहीं जी, नहीं मिल रही जी। इधर हुकूमत ने सब्सिडी दी है लेकिन मिल नहीं रही, हम फिर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है भाई इधर से सस्ती चीज़ें मिलेगी यूटिलिटी स्टोर पे, वो नहीं मिल रही। देखो हम कई चीज़ें लेने आए थे, एक बेसन के अलावा हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। घरेलू सामान जो ज़रूरत का होता है वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी, शहरी की आप बात सुन रहे हैं और उनका कहना है कि वो ज़रूरत की जो ख़रीदारी है वो करने के लिए आए थे, लेकिन सवाए बेसन के उन्हें जो है वो यहाँ से कोई चीज़ जो है वो नहीं मिली है। और दूसरी जानिब दाल मसूर, दाल चना और उसके साथ साथ दाल मूंग जो है वो दस्तयाब नहीं है और डालडा घी जो है वो दस्तयाब नहीं है। इसी तरह चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। और शहरियों का इस सिलसिला में कहना है कि करोड़ों रुपये की सब्सिडी है जो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम इन ज़रूरी अशिया की जो दस्तयाबी है उसे यूटिलिटी स्टोरों पर ज़रूरी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स खुले तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया और बड़ी तादाद में खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ जो है टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर के यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए थे, जिसकी वजह से इंतजामिया समेत हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए। उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपको जो है आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, जिसके बाद आज फिर जो है यूटिलिटी स्टोर खोल दिए गए और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, चीज़ें जो है ले रहे हैं। और एक बार अच्छी अगर बात की जाए यहाँ पे चीनी समेत तमाम दालें भी मुहैया कर दी गई। मेरे साथ कुछ यहाँ पे सार्फिन मौजूद, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं चीनी समेत तमाम चीज़ें आपने? बिल्कुल सही मिलियां जी, रेट से मिलियां है। कल तक सीगी बंद ना, अज मिल गई। अच्छा, किस तरह समझते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पे मार्केट से यहाँ पे रेट नालों जी बहुत फर्क है जी। उत्थे 210 रुपये के देन डे है, इस तो 70 रुपये मिलता। बहुत अच्छा मिलता, सही मिलता। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी, उनका कहना है कि मार्केट से हिसाब से अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ फ़ायदा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर हमेशा खुले रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ और भी शहरी मौजूद है, आप बताइए किस तरह समझते हैं यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, क्योंकि कल बंद थे, आज खुले हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे नजर आए। ये गवर्नमेंट का ऐसा इक़दाम है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर है ना रमज़ान में, उन सब पे वाफर मिकदार में चीज़ें फराहम की जाए ताकि आवाम को आसानी हो। बाजार से जो चीज़ें महंगी मिलती हैं यहाँ से सस्ती मिलती हैं, इसलिए गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी और शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं वाफर मकदार में चीज़ें जो है मुहैया की जाएँ। खास तौर पर चीनी जो है वो वाफर मकदार में मुहैया की जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर गरीब और मुस्तहक अफराद जो है उसको आसानी के साथ खरीद और फरोख्त कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साल में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले में दोनों मराकज़ पर रजिस्टर्ड होने वाले मर्द और ख़वातीन को रकम की अदायगी के सिलसिले जारी हैं। बात करते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जो है रजिस्टर्ड होने वाले मर्द और ख़वातीन को जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर सयाल असद अली की जानिब से दोनों बनाए जाने वाले मराकज़ पर जो निगरानी का सिलसिला भी जारी है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पैसों की अदायगी का सिलसिला जारी है, तो अब तक तकरीबन जो है कितने अफराद को रकम की अदायगी हो चुकी है और कितने अफराद जो है बाकी रहते हैं? अक्सर औकात देखने को ये भी मिलता है कि कुछ ख़वातीन के जो है उनके जो है अंगूठे मैच नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो कैश एहसास प्रोग्राम था उसकी फ़र्स्ट फेज़ में हमने परमानेंट बेनिफिशरीज जिसकी तादाद तहसील अहमदपुर साल में 7,998 थी, उसको इंश्योर करवाया है कि हमारे तमाम बेनिफिशरीज तक वो 12,000 की जो रकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सेकंड फेज़ में हमने उन बेनिफिशरीज तक पहुंचना था जो कि 81-71 पर रजिस्टर्ड हुए थे, उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे।
और इन मर्द और ख़वातीन में हमने 12,000 की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवानी थी, और इसमें जो रजिस्टर्ड होने वालों की तादाद थी वो 7500 से ज़्यादा थी। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो 20 अप्रैल तक ख़त्म हो चुका है, और जितने भी हमारे बेनिफिशरीज आ रहे हैं हम उनको अपने जो कैश काउंटर्स हैं उन पर सर्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि तहसील इंतज़ामिया की तरफ से जो बेहतरीन इंतज़ाम हैं उनको बरूए लाया जाए। उनके लिए सैनिटाइज़र और सिटिंग अरेंजमेंट्स और शेडी प्लेसेस का जो है अरेंजमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माह सियाम और दूसरी जानिब लॉकडाउन। जड़ावाला रोड के मुस्तहिक शहरी लॉकडाउन से खासे मुतासिर, कारोबार बंद, रोटी रोजी भी चलाना मुश्किल हो गया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सियाम का आगाज हो चुका और लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार मजदूर जो है इस वक्त घरों में मौजूद हैं, रोज़ा रख कर बैठे हैं, लेकिन घर में खाने के लिए, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए कुछ भी नहीं है, जिस वजह से फैसलाबाद जड़ावाला रोड के जो मकी हैं वो खास से परेशान हैं। बात करते हैं इस हवाले से। बताइएगा अम्मा जी, बताइएगा किस किस्म की परेशानी का सामना है? बेटा परेशानी तो इसकी है कि असी गरीब मस्कीन बैठे हैं अपने घरों में। करोना वायरस के पर बच्चे साडे भुखे मार रहे हैं, मुँह च रोज़ा है, रात को कोई पानी ना रखा है तो हुण से शाम पानी नाल ही खोलना, कोई चीज़ नहीं हथ में, कोई सानू बिंदाद नहीं मिल रही, ना कोई इमरान खान लू, ना कोई गौरमेंट लू, ना कोई जेडे महल माड़ियां वाले कोठियां वाले ने वो कहते ने इमरान खान नू आखो। इमरान खान से कहें। हमारे साथ और शहर भी मौजूद हैं। बताइएगा, इमदाद प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर अप्लाई किया है शहरियों ने? सर पूरे मोहल्ले ने अप्लाई किया है और मैसेज दोबारा उसको पहले तो आया ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, और ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करने के बावजूद कुछ नहीं, दोबारा मैसेज आ गया कि जांच पड़ताल हो रही है। तकरीबन आज 1 महीना हो गया जांच पड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं और लोग भूखे मार रहे हैं घरों में। कोई इमदाद पैकेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई फलाई वेलफेयर की तरफ से कोई भी पैकेज नहीं इधर है। ये लोग रोड पर जाने के मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका कहना है कि मकीन जो हैं भूख के बायस सड़कों की तरफ जाने पर मजबूर हैं। इनका कहना है, कह रहे हैं कि एहतजाज करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से गंदम की कटाई मजीद लेट होने का खदशा, किसान भी अल्लाह के हाथ सरबसदूद। उधर बादल मंडलाने लगे। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को कंबाइन हार्वेस्टर से गंदम की कटाई करने, भरियां छोटी बनाने और सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। जी हां, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से गंदम की कटाई मजीद लेट होने का खदशा है। कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र शहर की अहम शाहराहों कलमा चौक, रजाना रोड, चीचावतनी रोड समेत पब्लिक मकामात पर क्लोरीन स्प्रे किया गया। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए जो है कमालिया की मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिसमें कलमा चौक, रजाना रोड, चिचावतनी रोड समेत जो है दीगर पब्लिक मुकामात पर जो इंतज़ामिया की जानब से क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो कोरोना वायरस के खदशात को कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो है इंतज़ामिया की जानब से जो हदायत भी जारी की जा रही हैं कि तमाम लोग जो है कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने घरों में रहें ताकि जो है कोरोना वायरस के खदशात को कम किया जा सके। और कोरोना वायरस के खतरात को मद्देनज़र रखते हुए या फेस मास्क और जो है सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और अपने हाथों को जो है बार बार धोते रहें। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की जानब से जो मज़ीद कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो है गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें और अपने अपने घरों में महदूद हो जाएं, एक दूसरे के साथ सलाम लेने और जो मुसाफा करने से गुरेज़ करें ताकि जो कोरोना वायरस। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। खुर्रियां वाला दावत इस्लामी के ज़रिए इत्तेमाम मरकज़ फैज़ान मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। बात करते हैं शाहिदा परवीन से। शाहिदा परवीन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खुड़ियावाला में दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो उन्होंने शिरकत की और ब्लड जो है वो डोनेट किया। इस मौका पर दावत इस्लामी के मेम्बरान का कहना था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मकसद ही यही था कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई जा सके। उनका ये कहना था कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो इनकी ज़िंदगियाँ बचाना, इन नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाना उनका फ़र्ज़
ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دعوت اسلامی کے ہیڈ ہیں مولانا الیاس قادری، ان کی ہدایت پر پورے ملک بھر میں جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسے جو ہے وہ خون جو عطیہ کیا جا سکے ان بچوں کے لیے، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً اب تک 10,000 سے زائد بوتلیں جو ہیں وہ خون کی عطیہ کر چکے ہیں، اور جو وہاں پر موجود لوگ آئے تھے ان میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سادات فیملی کے لیے ان کے بہت شکریہ شاہدہ پروین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد میں پارس کوارنٹائن سینٹر میں جراثیم کش اسپرے کیا گیا۔ بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان مرزا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پارس کیمپس میں 103 افراد جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو رات سے ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ان کے لیے انتظامات کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اور متعلقہ SHO عامر سلیم کی جانب سے دورہ بھی کیا گیا، وہاں پر فوگنگ کی اور جراثیم کو سپرے کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے بہترین بندوبست ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دیگر سینٹرز ہیں وہاں پر بھی انتظامات کو چیک کر رہے ہیں، متعلقہ ہوٹلز جہاں پر اوورسیز پاکستانی ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر بھی انتظامات کو یقینی بنا رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی جو اسکریننگ ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ نے سال 2020 کے لیے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حوالے سے 1000 یونیورسٹی کے سروے کے بعد امپیکٹ رینکنگ جاری کر دی ہے۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، بتائیے گا رینکنگ کے حوالے سے۔ جی، ٹائمز انٹرنیشنل رینکنگ جاری کی گئی ہے یونیورسٹیز کی، جس میں دنیا بھر کی 1000 سے زائد یونیورسٹیز کا سروے کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جو پائیدار ترقیاتی اہداف ہیں اس حوالے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جاری کیے گئے تھے اقوام متحدہ کی طرف سے، جس میں پوری دنیا سے تعاون مانگا گیا تھا۔ اس حوالے سے مختلف پوائنٹس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی یونیورسٹیز کو جانچا گیا ہے۔ 1000 یونیورسٹیز اس میں شامل تھیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ فیصل آباد کی یونیورسٹی 1000 یونیورسٹیوں میں 302 نمبر پر براجمان ہے۔ مجموعی طور پر تمام اہداف کی کارکردگی کو دیکھا گیا، جس میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد 302ویں نمبر پر ہے۔ لیکن اگر انڈیویجول بات کی جائے تو جو پاورٹی ایلیویشن، غربت کے خاتمے کا گول اقوام متحدہ نے اپنا رکھا ہے، اس حوالے سے زرعی یونیورسٹی کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے 42واں نمبر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کی اگر بات کی جائے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے، تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک سینٹر بھی بنایا گیا ہے، سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز فار کلائمیٹ چینج بھی اس حوالے سے۔ تو اس تناسب سے اس تناظر میں 62ویں نمبر پر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے۔ دیگر گولز کی اگر بات کریں، اس میں کوآپریشن کے حوالے سے ہے کہ کتنا تعاون آپس میں کیا گیا، باہمی تعاون سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے میں، تو اس میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا 102واں نمبر ہے۔ اس حوالے سے ٹائمز انٹرنیشنل رینکنگ جاری کر دی گئی ہے، جس میں زرعی یونیورسٹی مجموعی طور پر 302 نمبر پر ہے اور پاکستان۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر اشرف۔ ڈاکٹر عاشق حسین نے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز کا چارج سنبھال لیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملاقات کی اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز تعیناتی پر انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کر کے مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر سابق DPI کالجز چودھری جہانگیر احمد بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سابق DPI کالجز چودھری جہانگیر احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر عاشق حسین کو DPO کالجز تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جنگ سمیت صوبہ بھر کی ایجوکیشنل اتھارٹی سے اسکول میں پڑی خالی سیٹوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کی صورتحال پر نوٹس لیتے ہوئے تمام اضلاع کے CEOز ایجوکیشن اتھارٹی سے جو ہے وہ خالی پڑی سیٹوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے PST، ESC، SC، SC اور ES اساتذہ سمیت جو ہے SSTs کی بھی جو ہے تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں سیٹیں ہیں جو خالی ہیں تمام صوبہ بھر کے اندر۔ اگر بات کی جائے جنگ کی، تو جنگ میں صرف جو ہے وہ ESC اساتذہ کی ہے 800 سے
زائد سیٹیں خالی پڑی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ پرائمری اسکولوں کے اندر اور ایلیمنٹری اسکولوں کے اندر جو ہے وہ تعلیمی معیار کے بھی شدید متاثر ہو رہا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے، جہاں پہ اساتذہ کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں، وہیں پہ اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کی بھی جو ہے تفصیلات طلب کی گئی ہیں تاکہ ان کی سیٹوں پہ بھی جو تعیناتی عمل میں لائی جا سکے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے درجہ چہارم کے افراد کی بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جبکہ اساتذہ کی ترقی کے حوالے سے بھی ریکارڈ جو ہے وہ محکمہ تعلیم۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اساتذہ کے لیے بڑا قدم۔ جنگ میں سیکنڈری اسکول ٹیچر اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کے کانٹریکٹ میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایس ایس ای اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کے کانٹریکٹ میں 1 سال کا اضافہ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کانٹریکٹ میں اضافے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ وزیر تعلیم مراد راست کی جانب سے مستقلی کے لیے بھی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ کورونا ایمرجنسی کے بعد ایس ایس ای اور اے ای اوز کی مستقلی کا پلان تشکیل دیا جائے گا، یہ کہنا تھا وزیر تعلیم کا۔ جیل سے رہا ہو کر گھر آنے والا شہری اپنی بیوی کو گھر نہ پا کر اپنے سالوں کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ جی ہاں، میری شادی 2012 میں پروین اختر سے ہوئی اور میرے 3 بچے ہیں۔ فوجداری مقدمے میں جیل چلا گیا تھا۔ جیل سے واپسی پر بیوی گھر پر نہیں تھی۔ بچوں سے پوچھا تو بچوں نے بتایا والدہ ماموں کے پاس گئی ہیں، لیکن میرے سالے میری بیوی کے بارے میں بتانے سے گریزاں ہے۔ عدالت میری بیوی کو بازیاب کروانے کا حکم دے، شہری کا عدالت میں یہ موقف پیش کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ نے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ نے پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ عدالت میری بیوی کو بازیاب کروانے کا حکم جاری کرے۔ فیصل آباد سیشن کورٹ